ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر نصراللہ رانا ماہر امراض ناک کان گلا آپ کی خدمت میں کچھ اچھی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں. میں نے پی ٹی وی پہ سینکڑوں لیکچر دیے، لوگوں کو اویئرنیس دی، ہیلتھ کا شعور دیا کہ صحت کیا ہے. میرا یہ سلوگن تھا کہ ہیلتھ از ویلتھ اینڈ ہیلتھ از اے کراؤن وچ از اونلی ویزیبل ٹو دا سک. ہمارے پاس جو میں نے نیو ہاسپٹل لاہور بڑا کام کیا، ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل، کہتے تھے میو سب دا پیو. میرے پاس مریض کراچی سے لے کے کوئٹہ، پشاور، کراچی تک they used to come to that place because that was a premier institute. جب انگریز جہاں پر آئے ہیں 1849 میں پنجاب میں، تو انہوں نے پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بنایا، ساتھ ہی گورنمنٹ کالج لاہور ہے جہاں سے میں نے ایف ایس سی کی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھا بھی ہے، پڑھایا. اس کے ساتھ پہ اٹیچ ہاسپٹل جو ہے اور جیسے نیو ہاسپٹل، یہاں کے ای این ٹی سیکشن میں بے شمار مریض آتے تھے، دور دراز گلگت سے بھی آتے تھے، کراچی سے بھی آتے تھے، کوئٹہ سے بھی آتے تھے، کیونکہ یہ ایک پریمیئر انسٹیٹیوٹ تھی. بیفور پارٹیشن دلی سے بھی مریض آتے تھے، یہاں بامبے سے بھی آتے تھے، کلکتہ سے بھی آتے تھے. یہ جگہ جو ہے یہ اس وقت کے جو برٹش راج تھا، برٹش کالونی تھی، یہ ہمارا جو علاقہ سارا، اس میں انہوں نے اچھی اچھی چیزیں بھی کی ہیں. پنجاب یونیورسٹی بھی بنائی ہے، انہوں نے ڈینٹل کالج بھی بنا دیا. لیکن سب سے ضروری ہے جو انسانی صحت کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا قیام، جہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں پرنسپل کے ساتھ جا رہا ہوں، پرنسپل پروفیسر افتخار صاحب تھے اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے. یہ وہ کالج ہے دنیا کی جو 100 میڈیکل کالجز میں اس کا شمار ہوتا تھا. ایک کلکتہ میں تھا کیونکہ انگریز سب سے پہلے کلکتہ میں آئے برصغیر میں when they landed. Second, when they came to Lahore, that they conquered the Punjab from the Sikhs. سکھوں کے ساتھ جنگ لڑ کے انہوں نے پنجاب کو ٹیک اوور کیا، اریگیشن کا نظام دیا، تعلیم کا نظام دیا، سڑکوں کا نظام دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحت کے لیے جدید طریقہ علاج، اس کی جو درسگاہ ہے جس کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں لیکچر تھیٹر نمبر 3 میں میں اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتا تھا. 4th ایئر MBBS کے اسٹوڈنٹ آتے تھے. آئی یوز ٹو ڈیلیور اے لیکچر دیا. یہ لاہور میں یہ نیلا گنبد کے ساتھ ایک عظیم الشان بلڈنگ ہے. ایسی بلڈنگ آپ کو انڈیا پاکستان میں نہیں ملے گی. یہ اٹیلین آرکیٹیکٹ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. اس وقت انگریز نے بڑی محنت کر کے کنگ ایڈورڈ جو تھے برٹش امپائر کے جو کنگ، انہوں نے یہ کیونکہ بنایا تھا تو یہ کالج اس کے نام پہ ہے، کنگ ایڈورڈ. پٹیالہ بلاک میں اگر آپ جائیں، پٹیالہ بلاک ایک بلاک ہے جو بیسیکلی ریاست پٹیالہ کے جو مہاراجا تھے انہوں نے ڈونیشن دے کے اس کو بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام پٹیالہ بلاک ہے. پٹیالہ بلاک از بیسیکلی دی ایڈمنسٹریٹو بلاک جہاں پر پرنسپل میڈیکل کالج اس کو کرتے تھے. اب یہ یونیورسٹی ہے، BC آفس کہلاتا ہے. ساتھ ہی وہاں پر لیکچر تھیٹر نمبر 1 2 3 لیکچر تھیٹر میں 4th ایئر کے جو MBBS کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ENT میں ان کو لیکچر دیتا تھا. بات تو یہ تھوڑی سی تمہید تھی. اب رہ گیا آج کا میرا ٹاپک ہے کہ بچوں میں بہرا پن، ڈیفنس ان چلڈرن. سب سے بڑا المیہ ہے ماں باپ کی جو دولت ہوتی ہے، ماں باپ کا جو پرائیڈ ہوتا ہے، ماں باپ کے جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں ان کو، وہ ان کے بچے ہوتے ہیں. اب 4 بچے ہیں، 3 بچے ٹھیک ہیں، ایک بچہ سن نہیں سکتا. جب سنے گا نہیں تو وہ بھولے گا بھی نہیں اور ٹوٹا ہی کرتا رہے گا. تو وہ 3 بچوں کی جو خوشیاں ہیں وہ ایک بچے کی وجہ سے مان پڑ جاتی ہیں. وہ ان کو لے کے کبھی سیاحوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی دس وے اور دیٹ وے. اس چکر میں نہیں جانا چاہتا. دے ویسٹ دیئر ٹائم. اتنے میں 3-4 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے جس میں ایک جو لیٹسٹ چیز میں آج بتانا ہے کوکلیئر امپلانٹ. کوکلیئر امپلانٹ ایک ایسی جادوئی ایک ڈسک ہے جو میں آرلینڈو میں گیا ہوں ٹو ریپرزینٹ پاکستان دیئر in the World ENT conference. Professor Jennifer Derryberry, she was from the house clinic from Los Angeles, California سے آئی تھیں. انہوں نے مجھے پہلی دفعہ یہ ایک چھوٹی سی ڈسک دی کہ آپ پاکستان میں PTV پہ اپنے ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ آپ لوگوں کو کچھ ٹی وی ہیلتھ کا پروگرام کرتے ہیں تو یہ بھی انٹروڈیوس. Transform sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again. To understand the function of a cochlear implant,
we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. और मैंने फिर वो लाया पाकिस्तान में, मैंने अपने पीटीवी के प्रोग्राम में भी वो दिखाई कि भाई एक इंट्रोडक्शन है, अवेयरनेस है कि भाई कुछ फैसिलिटीज हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आस्ता आस्ता बढ़ती है, इसी तरह जैसे टीबी की पहले दवाई नहीं थी, कायद आज़म की ज़िंदगी में टीबी की दवाई कोई नहीं थी, कोई इतना बड़ा आदमी जो था उनको टीबी की दवाई मार्केट में नहीं थी तो उसे दवाई ना मिल सकी, एंटीडाइट। इसी तरह ये हार्ट के बेशुमार जो अब टेस्ट उस्ट हो जाते हैं, किसी का एंजियोप्लास्टी हो जाती है, किसी का स्टंट पड़ जाता है, कोई बाईपास, पहले नहीं थे। जब मैं हॉस्पिटल में 80s की बात करता हूँ, नो सिस्टम। ये तो पीआईसी बना है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जहाँ मैं ये लाहौर में राना ईएनटी सेंटर जे रोड पे जहाँ से मैं टॉक दे रहा हूँ, ये मेरा अपना हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल उसके साथ उसके पिछवाड़े में है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बस से साथ ही है, जहाँ पर बेहतरीन हार्ट के अब तमाम फैसिलिटीज़ हैं। अब मेरे पास भी इसी तरह, हमारे पहले कुछ तस्वर था ही नहीं कि आर्डियोलॉजी भी कोई चीज़ है। आर्डियोलॉजिस्ट की पोस्टें कैसे आई? अब मैं बच्चों के हवाले से, मैं ज़ियाउल हक साहब से जाके मिला, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान के, मुझे 1.25 घंटा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब बताएं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आप सबसे पहले ईएनटी सेंटर, यानी जहाँ पर एक आर्डियोलॉजिस्ट हो, आर्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट पहली दफ़ा मेरे कहने पे उस ये मेयो हॉस्पिटल में जो ईएनटी सेंटर बना है और जहाँ पर वो आर्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट भी पहली इधर आई थी, वो उसी डायरेक्टर की रोशनी में थी जो मैंने जब ज़ियाउल हक साहब से जाकर मुलाकात की। उन्होंने फिर तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को लिखा, फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा। अब माशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि एक सिस्टम डेवलप हो गया। अब ये है कि बच्चा ना नहीं सुनता, 6 महीने का बच्चा है, महीने का है, वो माँ बाप लेके चले जाते हैं, आर्डियोलॉजिस्ट उसको चेक करता है, टेस्ट करता है। आर्डियोलॉजिस्ट का रोल टेस्टिंग का है, जैसे एक पैथोलॉजिस्ट का है, एक रेडियोलॉजिस्ट का है। रेडियोलॉजिस्ट ने देखना है कि फेफड़ों में टीबी है कि नहीं है, बाजू टूटा हुआ है कि नहीं है, गुर्दों में पथरी है कि नहीं। लेकिन इलाज करना, अगर टीबी का इलाज करना तो टीबी स्पेशलिस्ट ने करना है, और रेडियोलॉजिस्ट ने इलाज उसका नहीं करना, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। इसी तरह अगर बाजू टूट गया हुआ है, एक्सरे में आ गया, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन विल डू द जॉब। इसी तरह अगर कान में अगर बहरापन की तशखीस हो गई है कि भाई देयर इज ए डेफनेस, अब उसका इलाज करना जो है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसके ज़ुमरे में आता है। उसने फिर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना है, क्या दवाइयाँ देनी है, क्या उसके आला लगाना है। ये आला जो है ये जादुई चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया दिल्ली में 5वीं साल की ईएनटी कॉन्फ्रेंस में शोका होटल में, तो मैं आई हैड टू गो टू द एम्स आल्सो। एम्स साथ ही बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि पूरे बरसगीर में इतना बड़ा हॉस्पिटल है ही नहीं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये देखिए एम्स, वहाँ पर प्रोफेसर डेकर थे जो मेरे दोस्त थे, ईएनटी के हेड भी थे, और उस इंस्टीट्यूट के पूरे के वो डीन भी थे। उन्होंने भी फिर बताया, जब मेरी उनसे अच्छी डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी देखो हम लगाते हैं आला समात। आला समात एक जब लग जाता है बच्चे को छोटी उम्र में, वो सुनना शुरू कर देगा, जब सुनेगा तो बोलेगा भी, गूंगापन में ज़्यादा खुद कोई बीमारी नहीं। फिर उन्होंने मुझे हिम्मत कर दिया, कहा कि डॉक्टर साहब मैं आज आपको एक मिरेकलस ऑपरेशन दिखाऊंगा। ही टुक मी टू द ऑपरेशन थिएटर, प्रोफेसर डेका, द डीन ऑफ एम्स, द टॉप डॉक्टर ऑफ इंडिया, ही टुक मी टू द ऑपरेशन थिएटर। वहाँ जाके उन्होंने एक कॉकलियर इम्प्लांट की
सर्जरी की, कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन करके लगाया। 40 मिनट में उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। हालांकि ये ऑपरेशन मैंने उससे पहले अमेरिका में भी देखा था, बरतानिया में भी देखा, उनसे उन्होंने बेहतर कर दिया। वो घंटे 1.5 घंटे में करते, इन्होंने 30-35 मिनट में उसको कर दिया। हाँ, ये एक चीज़ थी जो मेरे लिए, मैं जब पाकिस्तान में आया हूँ तो फिर मैंने इसको काफ़ी आवाज़ उठाई। अब उसी सिलसिले में सुनाई फाउंडेशन जो है, जिसका मैं CEO भी हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। मेरे साथ बैरिस्टर मुबीर राना साहब हैं, हमारे लीगल एडवाइज़र, और वो डायरेक्टर भी हैं सुनाई फाउंडेशन के। प्रोफेसर ताबिंदर राना है, वो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द गायनी है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से साहब उन्होंने वहाँ 17 साल एज ए प्रोफेसर काम किया है, वो भी अपनी इनपुट देती हैं। ये सुनाई फाउंडेशन हमारी जो है, ये एक ऐसी इंटरनेशनल NGO है जिसमें हमने लोगों को अवेयरनेस दी भी है, कैंप भी लगाए हैं, कर भी रहे हैं और आगे से भी करते रहेंगे जब तक अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है। ये तो उसके साथ है नहीं। सुनाई फाउंडेशन का मेन मकसद लोगों में सबसे पहले ये है कि अवेयरनेस देनी है कि भाई जो बच्चा अगर पैदा हुआ है, ये आज का टॉपिक हमारा चिल्ड्रन के ऊपर है। अब तो इस हद तक है कि जब मैंने पहली ENT कॉन्फ्रेंस कराई, आप देख सकते हैं ज़ियाउल हक साहब बैठे हैं, मैं खड़ा स्पीच कर रहा हूँ, तो उस वक्त पीरियड था 2 साल की उम्र में आला लगाते थे। फिर 1990 में मैंने 10th इंटरनेशनल ENT कॉन्फ्रेंस PC होटल में कराई है। वसीम सजाद साहब उसमें एज ए चेयरमैन सेनेट, एज ए चीफ गेस्ट थे। उस वक्त प्रोफेसर PW एल्बर्टी, ही केम फ्रॉम कनाडा, टोरंटो यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन थे एंड वर्ल्ड अथॉरिटी इन द हियरिंग ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने कहा जी आप इसको 2 साल की बजाय 6 माह कर दें। उन्होंने एज को रिड्यूस कर दिया कि 6 माह की उम्र तक, 6 माह की उम्र में भी बच्चे को आला लग जाए तो बेहतर है, ज़्यादा 2 साल तक डोंट वेट। अब जो लेटेस्ट आई है इस वक्त, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं ये न्यूयॉर्क में गया था, फिर मेरी वाशिंगटन में आप देख सकते हैं, मैं वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा जी Day 1 पे आप अच्छे जो गायनी के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर बच्चा जब पैदा होता है तो उसी दिन उसका कान टेस्ट किए जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर ज़रूरत हो तो उसको Day 1 पे आला लग जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। सुनाई फाउंडेशन का मेन मकसद यही है, अवेयरनेस देनी। जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके मैं कैंप लगाता हूँ। जैसे मैंने जिसोबरा शफी हॉस्पिटल में भी कैंप लगाया इब्रार हक साहब के कहने पे, मुझे उन्होंने रिसीव किया। DCO नारोवाल, वो खुद उनके भाई में जिसलाल साहब मेरे साथ जा रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पर 200-250 बच्चों को देखा, लोगों को फ्री मैंने हियरिंग एड दी। और मैं तारीफ भी करूँगा कि इतना अच्छा हॉस्पिटल इब्रार हक साहब ने बनाया है। मकसद है कि इस वर्थ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल दूर, वो इंडिया के बॉर्डर के पास। अब देखो सदा ना मैंने बैठे रहना ना उन्होंने, वो एक हॉस्पिटल बना के याद रहेगा। जैसे गंगाराम है लाहौर में, सर गंगाराम यहीं शेखपुरा के रहने वाले थे, हिम्मत करके उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल बना दिया। अब मैं जब दिल्ली में गया हूँ तो दिल्ली में यकीन करें 4 गंगाराम है उनके नाम पे, गंगाराम 1, 2, 3, 4। अभी हमारे लाहौर में तो एक ही गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ दिल्ली में उन्होंने 4 बना दिए। अब अंदाजा करें कि वो गंगाराम जो भी था, उस शख्स ने एक अच्छा काम किया, अभी तक नाम उसका चल रहा है। हालांकि उसको फौत हुए अब कितने सेंचुरी के करीब हो गई है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो बच्चों में समाज का मसला है, माँ बाप इसको ज़रूर देखें, बच्चे की केयर करें और उसको बर वक्त डॉक्टर के पास जाके आर्डियोलॉजी करें। फर्दर काम जो है वो ENT स्पेशलिस्ट ने आला लगाना है, नहीं लगाना, दवाई देनी है। कान बह रहे हैं, आप इस वो बच्चे के मुंह कान में से पीप आ रही होती है, तो उसको फिर आर्डियोलॉजिस्ट ने तो नहीं ठीक करना, वो ENT स्पेशलिस्ट ठीक करे। जब वो कान इस काबिल हो जाए तो फिर वो उसमें डिस्पेंस करे। ये आले को लगा के फिर बाद में भी इसको फॉलोअप करना पड़ता है। ये लगा देना काफ़ी नहीं है कि ये एक आला लगाया तो जाओ खसमा रुकाओ, नो। उसको 15 दिन बाद बुलाना पड़ता है, महीने बाद मैं बुलाता हूँ, फिर मैं 2 महीने बाद बुलाता हूँ, फिर मैं 3 महीने बाद बुलाता हूँ। 1-2 साल में जो ना सुनने वाला बच्चा है वो अमूमन ठीक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।